And today our topic is all about valuation of equity share कि equity share क्या होता है, how do we value, you know, what importance it plays in our financial, finance or banking organization or any sort of company or private or public company. So it is all about a valuation. Okay. Uh, so speaking about myself, I'm a chartered accountant and I have experience about 7 years in various industries. And currently I'm associated with EVA GDS as a assistant manager in liquidity domain. So so this is a very brief index की equity share है, valuation होगा, type of value होगा, method of valuations, and formulas. So equity share क्या होता है? So equity share is basically owning a company. For example, आपने पैसा डाला किसी कंपनी में and in return of that you will get something कि this is your percentage and in future अगर कंपनी पैसा बनाएगी and you will get the return in the form of dividends, repatriation of profit, anything. ठीक है, तो it is called equity share. Equity share is nothing but a ownership which you will be getting in terms of money you invested in that company. And so the company will be paying you dividend आफ्टर रिपैट्रिएटिंग ऑल डिबेंचर्स वगैरह सब कंप्लीट करके जो बचेगा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड इक्विटी शेयर. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इन द मार्केट, एनएससी बीएससी, जहाँ पे आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो. सो वंस यू बाय दैट शेयर, सपोज करो आपने 10 शेयर खरीदे या 20 शेयर खरीदे किसी कंपनी के, रिलायंस के खरीद लिए 20 शेयर. तो रिलायंस के जब आप 20 शेयर खरीदते हो तो आपको क्या मिलता है, ओनरशिप मिलती है आपके डीमैट में. आज पहले जैसे अगर आप देखोगे तो यू मस्ट बी डूइंग दैट, देयर वाज शेयर सर्टिफिकेट्स, बट टुडे वी डोंट हैव सच फिजिकल एविडेंस. वी ओनली हैव डीमैट अकाउंट. तो वेयर यू विल बी सीइंग कि मेरे पास इतने शेयर हैं तो आई एम द ओनर ऑफ दैट कंपनी. सो यू विल बी स्टार्ट गेटिंग द ईमेल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंपनी. एंड अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो यू विल बी गेटिंग द डिविडेंड ऑन दैट मनी, on that shares invested. So that is all about equity share. So okay, so it is called as stock and it is a portion of that company investors invest into a company via initial public offer. So initial public offer is something कि company fresh अपना आईपीओ लेकर आ रही है, पब्लिक कंपनी बन रही है, पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा लगता है, so that is called IPO, where investors can make their investment in that respective company. And offer for sale is like, it is not a it is not a fresh or it is not like you abhi public company bani. It is like it is being a public company and they are again coming for sale. For example, अभी आपने पतंजलि का सुना था, देयर हैव फ्रेश ऑफर फॉर सेल हुआ था, ठीक है, जहाँ पे डिस्काउंट पे एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पे मिला था. आईपीओ फॉर एग्जांपल, अभी कितने सारे आईपीओ आ रहे हैं, जैसे अब जोमेटो का कुछ टाइम पहले आया था, अभी कितने सारे बैंक्स जो हो रहे हैं उनका आईपीओ आ रहा है. सो दैट इज ऑल अबाउट अ पोर्शन ऑफ कंपनी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है. सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स वाया स्टॉक मार्केट, जो मैंने अभी आपको एनएससी बीएससी के बारे में बताया कि एनएससी बीएससी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. और अदर मोड्स जैसे अमेलगमेशन हो रहा है, कोई कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे वैल्यूएशन की बड़ी जरूरत होती है कि यार वैल्यूएशन होता कैसे है, कि किस वेदर आई एम मेकिंग अ फ्रेश डील और नॉट, वेदर आई एम मेकिंग द प्रॉफिट मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी और नॉट. जब रीस्ट्रक्चरिंग होती है, सॉफ्ट इश्यू होते हैं, तो हर जगह वैल्यूएशन का बड़ा रोल है. यू नो एंड इट इक्विटी शेयर का तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के नाम से डिस्क्लोजर भी जाता है. In your financial statement will be showing that कि what is the change in equity. In fact, you will any person holding more than 5% of shares also needs to record his name or his or her name, like company needs to record his or her name in the financial statement. So equity share is nothing but a ownership will be getting. Okay, they're eligible for profit and losses and dividend. So equity share I think is the most risky one also, क्योंकि क्या होता है इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है और रिटर्न रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है. सो फॉर एग्जांपल, जैसे आपका डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किया, सो यू विल बी गेटिंग द फिक्स्ड रिटर्न एंड द डिबेंचर अमाउंट और द फेस वैल्यू अमाउंट व्हेन द पीरियड गेट्स ओवर. फॉर एग्जांपल, व्हेन आपने लोन दिया तो लोन में क्या, यू विल बी गेटिंग द इंटरेस्ट एंड द लोन अमाउंट. बट इन इक्विटी शेयर इट इज नॉट लाइक दैट. फॉर एग्जांपल, आपने एनएससी में शेयर की खरीदा, तो अगर आज 100 रुपए का शेयर है, इट इज नॉट लाइक दैट टुमारो इट विल गेट 50 और 70 और 80 और 120. It can be changed to any amount. It can change to 80, 90, 120, 130. So depends upon you when you want to invest in. So it is completely a market understanding. But आप the point is कि market का जो उसका rate is not a constant. Face value is constant जो आपके balance sheet पे दिखती है. But market price is not constant. It keeps on fluctuating depending upon the factors. So ये हम आगे भी discuss करेंगे. So as per section 43,
ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि दे आर एलिजिबल, दे आर कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर एंड आर यूनिट ऑफ ओनरशिप विच कैन बी एक्सचेंज बाय वैल्यू ऑफ मार्केट फोर्सेस। ऑब्वियसली मार्केट फोर्स क्या है? आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, या स्टॉक मार्केट हो गया, एनी थिंग। ठीक है। सो फॉरवर्ड, व्हाट इज वैल्यूएशन? वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? भाव। एक्चुअली द बेसिक प्राइस, अगर बेसिक लेमन टर्म में बोले, उसका रेट क्या है, किस किस प्राइस पे उसको आपको लगता है कि वो वैल्यूएशन करेक्ट है। द फेयर वैल्यू इज मीन द फेयर करेक्ट प्राइस, जो आपको लगे कि जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा, मतलब आपके जो शेयर के अंदर जब प्राइस आप डिटरमाइन करोगे, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट होगी। तो जिस प्राइस पे वो आएगा, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू, यू नो, द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी। बट ऑब्वियसली जब अगर आप देखोगे, जितने भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि मार्केट प्राइस, जो स्टॉक मार्केट प्राइस है, वो क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रिलायंस का शेयर अगर आज फॉर एग्जांपल 2600 के राउंड है, सो इफ द फेयर वैल्यू इज ऑफ द कंपनी इज 2800 एंड द मार्केट प्राइस इज 2600, that means the share is over undervalued, you know. And in case you will feel that no, the fair value of the company, or the fundamental value of the company is 2000, but market value is 2600, that means it is the right time to sell and get out of that, get out of that opportunity, because that is kind of the overvalued, you know. That is called a fair value, which is based on hypothetical market and supplier. Like, it is incorporating all the factors, all the information, and then you will get the fair value of the company, you know. So knowing the true or fair value of the company by means of using various tools and method, the valuation is very important. Guys, it is very difficult to completely determine the fair value. It will take years of study, research, you know, to understand कि fair value हो कैसे सकती है, how the trends are moving, how the fact market is moving, what are the economic factor, macroeconomic factor, microeconomic factor, जिसके basis पे fair value move करता है. तो on the basis of that we make the decision actually. ठीक है। सो वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरिंग, जैसे आपको मैंने बताया, अमेलगमेशन, मर्जर होता है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। बैंक लोन लेते हैं तो बैंक देखता है कि यार कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन क्या है, बोनस शेयर। इनफैक्ट जब आप आजकल आपने शार्क टैंक्स देख रहे हो, तो सो दे गो फॉर वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन शार्क टैंक्स में जो जब आप फंडिंग लेने जाते हो, तो दे विल सी कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन अगेन दिस इक्विटी शेयर, कि कंपनी की ओनरशिप की वैल्यूएशन कितनी है, कितना मार्केट में उसका इन्वेस्टमेंट, कितना उसका मार्केट में रेट है, कि अगर आज उस कंपनी को बेचने जाएं तो कितना पैसा मिलने को तैयार है। और इनफैक्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2010 में कोई कंपनी स्टार्ट करी है और आपने यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड 1 करोड़, ओके, एंड इन 2020 और 22 दैट सिमिलर 1 करोड़, वो 1 करोड़ कितना आज बनने को तैयार है, उसकी वैल्यू आज के डेट पे कितनी है, इंक्लूडिंग ऑल द फैक्टर्स, योर एक्सपीरियंस, नॉलेज, हार्ड वर्क, मार्केट फैक्टर, ठीक है, और योर एम्प्लॉयज इन इम्पोर्टेंस, और एनीथिंग, that is called valuation. ठीक है। So for example, I've given a very ब्रीफ स्निप, जहाँ पे दिख रहा है कि भाई शेयर आउटस्टैंडिंग कितना था, 10 लाख, और कंपनी बी का 1 लाख, एंड द शेयर प्राइस इज 50 एंड 5000. इक्विटी वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग द गिवन फॉर्मूला विच इज शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू करंट शेयर प्राइस. Current share price, that is valuation. It is not talking about face value, it is talking about current share price, which is अगेन योर मार्केट प्राइस, कि मार्केट में कितना रेट है. सो 10 लाख इंटू 50 लाख एंड 500 करोड़. सो इट इज 100,000 लाख, हाँ 5 करोड़. सो इट इज कॉल्ड इक्विटी वैल्यूएशन. ठीक है। एंड दिस प्राइस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि 500 या 5,000 रुपए कैसे बना. इट इज नॉट कि आपने कोई स्टडी करी और आपने निकाल दिया. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ नॉलेज to determine this share price actually. Okay, so that's what is all about the valuation. Okay, so I think मैंने आपको भी बताया था कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू अलग अलग होता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज मींस लाइक इट इज द वैल्यू विच इज शोन ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, की 1 रुपए का फेस वैल्यू है, 1 रुपए पे इशू करते हैं वो. 10 रुपए इनिशियल वैल्यू एक्चुअली, कि 10 रुपए फेस वैल्यू. यू मस्ट हैव सीन योर वेरियस prospectus जब आप आईपीओ लॉन्च होता है, कि यार कंपनी हैज इशूइंग 10 lakh or 20 lakh shares at a face value of 10 rupees. Dividend is always paid on the face value. Book value, it keeps on changing because the value of assets or liability
keeps on changing. Okay. So book value is something is called value of the company, value of the shares on the basis of the your capital reserve plus profit minus loss. It is again in your net assets. Net assets. Okay. Total assets minus liability will be your equity. So book value of the company divided by number of shares. Market value, which is something which is being determined on the basis of the factors determine the market. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस बूम अप करेगा. अगर बहुत ज्यादा सेलिंग 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 हर कोई सेल बेच रहा है तो मार्केट प्राइस ऑब्वियसली गिरेगा. So that is all about market value, you know, price on which price on which shares is being sold or traded in the stock market. That is about market value. अब फेयर वैल्यू जो आपको मैंने बताया था, हाइपोथेटिकल इन्वेस्टर अगर फॉर एग्जांपल अगर वो इतनी ज्यादा नॉलेज और रिसर्च कर लेता है और ही एंड अप इन गेटिंग अ प्राइस जो उसको लगता है कि यार ये मेरे हिसाब से कंपनी का फेयर वैल्यू होना चाहिए, और if the market value is above that market price is above the fair value, that means overvalued है. अगर उससे कम है तो undervalued है. So that is all about, you know, face value, book value, market value and fair value. ठीक है. फेस वैल्यू क्या है? बेसिक, जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर आता है. बुक वैल्यू जो बुकिश टर्म्स जिसे कहते हैं, बुक के हाउ यू कंसिडर ऑल द फैक्टर ऑफ योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इन योर शेयर इन योर प्राइस. मार्केट वैल्यू जो मार्केट फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है. फेयर वैल्यू इज समथिंग जो जो कंप्लीट नॉलेज के बेसिस पे किया जाता है. ठीक है. So moving on to methods of valuation, we have three method actually: net asset method, yield method, and fair value. Net asset, yield और fair value. Net asset is completely based on बैलेंस शीट साइज. होता है बैलेंस शीट का क्या है, बैलेंस शीट के बेसिस पे वो डिसाइड किया जाता है कि उसका नेट एसेट क्या है. नाम में लिखा है नेट एसेट, नेट ऑफ द ऑल द एसेट्स. ठीक है. यील्ड मेथड का मतलब होता है जो यील्ड का मतलब होता है रिटर्न. ठीक है. फेयर वैल्यू मेथड इज नॉट अ मेथड एक्चुअली, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेट एसेट एंड यील्ड मेथड. सो इट इज कॉल्ड अ ड्यूअल मेथड. ठीक है. सो आई थिंक यू विल बी सीइंग दैट नेट एसेट मेथड के नीचे तीन अदर नेम्स लिखा हुआ है. सो कुछ भी नाम हो जाए, ब्रेकअप वैल्यू हो जाए, बैलेंस शीट मेथड आ जाए, एसेट बैकिंग मेथड पूछे, कुछ भी हो जाए, इट इज ऑलवेज अ नेट एसेट मेथड. ठीक है. या यील्ड मेथड में अर्निंग कैपेसिटी, डिविडेंड यील्ड, मार्केट वैल्यू मेथड, वो हमेशा यील्ड मेथड ही रहेगा. ठीक है. तो नेट एसेट मेथड देखते हैं कि दीज आर बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की वैल्यू कितनी है, नेट एसेट्स कितने हैं कंपनी के, विच इज योर टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इक्विटी जो हमने पहले पढ़ा था. और नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. गाइस इक्विटी शेयर होल्डर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रेफरेंस इज अ फिक्स्ड पेमेंट टर्म. वो भी इसके वो अलग चीज होता है, इक्विटी इज अलग डिफरेंट थिंग. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस. इन केस नॉट, प्लीज लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस. कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बोलो कि यार प्रेफरेंस शेयर क्या होता है सर, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है. आई विल बी टेकिंग अ वीडियो ऑन दैट ऑल एज वेल. और मेरे को पूछो आप लिंक्डइन मैसेज पे. इट कंसिडर बैलेंस शीट बेस. बैलेंस शीट को लिया जाता है कि नेट एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितना है, एंड यूजुअली यूज मेजरली एट टाइम ऑफ लिक्विडेशन. बिकॉज जब कंपनी नेट एसेट्स आप तभी देखते हो यार जब आपके मार्केट फैक्टर सब खत्म हो गए हैं, आपके कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो लिक्विडेशन का स्कोप आ रहा है, कंपनी को लगता है यार फ्यूचर अर्निंग्स नहीं है, तो नेट एसेट्स को देखेगी ना. काइंड ऑफ बुक वैल्यू हो गया ये जो हमने पढ़ा था, बुकिश वैल्यू इज कॉल्ड नेट एसेट मेथड. यील्ड का मतलब हो गया रिटर्न, कि कंपनी यार गोइंग कंसर्न है, रिटर्न अच्छा दे रहा है एंड कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे हैं, एंड दैट केस कंपनी देखती है यार मेरा रिटर्न अच्छा आने वाला है, और मैं अपने रिटर्न्स के बेसिस पे अपने वैल्यूएशन करूं कि भी यार मेरा फ्यूचर में रिटर्न इतना है, तो उसके बेसिस पे वैल्यूएशन कितना होने वाला है. दैट इज ऑल अबाउट यील्ड मेथड. इट फोकसेस ऑन फ्यूचर एंड व्हाट कंपनी विल बी अर्निंग इन द फ्यूचर डिटरमाइंड बाय द फ्यूचर कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड यील्ड मेथड. नेक्स्ट इज अ फेयर वैल्यू मेथड. फेयर वैल्यू मेथड क्या होता है कि यार इट इज नॉट एक्चुअली मेथड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेट एसेट प्लस यील्ड. इट इज नॉट मे बी जैसे नेट एसेट मेथड की कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कमियां है कि यार ये लिक्विडेशन में लेता है सिर्फ, ये सिर्फ फ्यूचर रनिंग कैपेसिटी लेता है, करंट पोजीशंस नहीं ले रहा. ठीक है. तो इन दोनों को मिक्स करके एक एवरेज लिया जाता है. सपोज नेट एसेट का 10 रुपए बनता है, यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग 12 रुपए बनता है, तो 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 11. So 11 will be a fair value as per this method. Okay. So that is again a very basic. ये कोई मेथड इसमें समझने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है कि नेट एसेट्स क्या होता है. नेट एसेट्स, यील्ड, रिटर्न, फेयर वैल्यू. वैल्यू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड्स. ठीक है. सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन. सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन कैलकुलेशन बड़ा इजी है. नेट एसेट्स के अंदर आपको क्या करना है, देखो अगर आपके टोटल एसेट बैलेंस शीट में 1000 रुपए हैं, पेमेंट आपने लाइबिलिटी करी 50 रुपए की, और प्रेफरेंस शेयर आपके 10 रुपए, तो 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. नंबर ऑफ शेयर सपोज अगर 10 हैं, तो 4 विल बी योर नेट एसेट वैल्यू. एज पर नेट एसेट वैल्यू द इक्विटी शेयर प्राइस और मार्केट प्राइस विल बी 4. और अगर अब मार्केट फेयर वैल्यू विल बी 4, और अगर आपको लगता है मार्केट में 10 रुपए का शेयर होना है, तो भाई उसको उसको कुछ मत करो,
वो ओवर वैल्यूड है, वो कम आएगा, देन यू विल स्टार्ट बाइंग द शेयर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू। यील्ड मेथड इज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट, कितना रिटर्न आपको लगता है होने वाला है, इनटू पेड अप शेयर कैपिटल, कितना पेड अप शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1,000 रुपए का आपका पेड अप शेयर कैपिटल है एंड यूर नॉर्मली इन द मार्केट रेट 8% हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड रेट आपको लगता है कि 10% है, तो 10% के हिसाब से आपकी वैल्यू कितनी होगी। It is a capitalization method, capitalizing your share capital, that is called all about yield method। ठीक है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा कि भी अवेलेबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल, उसके बेसिस पे आपने एक्सपेक्टेड निकाला नॉर्मली कितना हो रहा है इनटू पेड अप शेयर कैपिटल। समझ रहे हो, अगर 100 रुपए आपका पेड अप शेयर कैपिटल एंड नॉर्मली आप 8% कमा रहे हो, तो अगर 10% कमाओगे तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड यील्ड मेथड। ओके, अर्निंग कैपेसिटी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ या नेट एसेट प्लस यील्ड मेथड। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू प्लस यील्ड मेथड डिवाइडेड बाय 2। सो गाइस इट इज वेरी बेसिक सेशन, यू नो, जहाँ पे मैंने आपको नेट एसेट वैल्यू के बारे में बताया, यील्ड मेथड के बारे में बताया, अर्निंग कैपेसिटी के बारे में बताया। इनके स्टिल आपको कोई एक प्रैक्टिकल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में समझना है, प्लीज डू लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं आपको एक सेशन दे पाऊँ कि नेट एसेट वैल्यू का पूरा बैलेंस शीट एक बेस लेके कि यार इसमें नेट एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, इक्विटी कितना है, तो उसके बेसिस पे हमने शेयर प्राइस निकाला है। अगर यील्ड मेथड लें कि यार हमारा एक्सपेक्टेड रेट निकाल लें और नॉर्मल रेट 8% इंडस्ट्री के हिसाब से इतना होना चाहिए, तो कितना वैल्यूएशन होगा, अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से कितना होगा, फिर हम क्या करेंगे उसको कंपेयर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के साथ। सो दैट इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन। एनी कुछ भी समझ ना लगे, जस्ट टू लेट मी नो, पिंग मी आउट, ठीक है, ऑन व्हाट्सएप मैसेज और लिंक्डइन, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, ये मेरी बेसिक डिटेल्स है, जस्ट यू नो फॉर योर रेफरेंसेस। So thank you so much.